अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया था। आज हम मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम डिफाइन किस तरह करते हैं। जब टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स को एक ही क्रॉस के अंदर फॉलो किया जाता है तो उनके जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं इनटू द गमीट्स, और एक ट्रेड के अलील की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनटू द गमीट्स उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता दूसरे ट्रेड की अलील की डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करने के लिए डाई-हेब्रा क्रॉस किया था। हमें पता है कि जो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करने के लिए मोनो-हेब्रा क्रॉस किया, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करने के लिए मेंडल ने फिर डाई-हेब्रा क्रॉस किया। अब डाई-हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें टू ट्रेड्स को एक ही टाइम पे फॉलो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डाई-हाइब्रिड क्रॉस। और डाई-हाइब्रिड क्या होते हैं? द ऑफस्प्रिंग ऑफ डाई-हाइब्रिड क्रॉस, इसको हम बोलते हैं डाई-हाइब्रिड्स। इसको हम डिफाइन इस तरह भी करते हैं, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई-हाइब्रिड। After studying each trait separately, Mendel decided to study the inheritance of two traits simultaneously. He used seed shape and seed color. Seed shape could be round or wrinkled, while the seed color could be yellow or green. Mendel crossed a true breeding round yellow seeded plant with a true breeding wrinkled green seeded plant. All the F1 progeny were the round yellow seeded plant. It means that round seed color shape is dominant over the wrinkled seed shape, while the yellow seed color is dominant over the green seed color. All the F1 progeny were the dihybrid. Alleles for seed shape and seed color were not bound to remain in the parental combination forever, which is capital R with capital Y and small r with small y. R could go with capital Y or small y in any gamete with equal chance. In the same way, small r could go with capital Y or small y in any gamete with equal chance. As a result, four types of gametes are produced. Two are the parental types, capital RY and small r small y. And two are the two new gametes, which are small r and capital Y, capital R and small y. Mendel obtained F2 progeny by self-fertilizing F1 dihybrid. In F2 progeny, seeds were not bound to produce only the two parental combination, which were round yellow and wrinkled green, but also produced two new phenotypic combination, which were wrinkled yellow and round green. Mendel obtained 9:3:3:1. 9 of the seeds were round yellow, 3 were wrinkled yellow, and 3 were round green, and 1 was wrinkled green. We can see this is round yellow seed, this is also 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 7, 8 and 9. So we can see that 9 of the seeds were round yellow and 3 of the seeds were wrinkled yellow. I will show you 1, 2
and 3. In the same way, 3 of the seeds were round green, 1, 2 and 3, and one of the seeds was wrinkled green. So Mendel concluded that the two new phenotypic combinations will arise from the independent assortment of the alleles into the gametes. In this way, Mendel defined dihaplocross, or we can say law of independent assortment, in this way that when two contrasting pairs of traits are followed in a same cross, their alleles assort independently into the gametes, and the distribution of alleles into the gametes of one trait has no influence on the distribution of alleles of other trait. This is called law of independent assortment. Next है what is probability. The chance of an event to occur is called probability. Seed shape and seed colors inheritance are the independent events. अगर हम बात करते हैं सीड शेप की, तो जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 प्राइम ऑब्टेन की थी, तो उसमें जो 3 आउट ऑफ 4 थे वो सीड जो थे वो राउंड थे, वाइल 1 आउट ऑफ 4 जो थे वो क्या थे, रिंकल्ड थे. इन द सेम वे जब हमने सीड कलर की के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा था, तो उसकी जब F2 प्राइम ऑब्टेन की थी, उसमें हमने ये देखा था कि ये 3 आउट ऑफ 4 जो थे वो येलो थे, वाइल 1 आउट ऑफ 4 जो थे वो ग्रीन थे. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसको हम समझाने के लिए मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस की जो प्रोडक्ट है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप को आपस में मल्टीप्लाई करें. तो आप देख रहे हैं जो राउंड की फिनोटाइप है वो है 3 आउट ऑफ 4, जबकि येलो की जो फिनोटाइप है वो है 3 आउट ऑफ 4. ये दोनों क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आते हैं. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राउंड येलो आती है वो क्या आती है, 9 आउट ऑफ 16. सो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो राउंड भी 3 आउट ऑफ 4 थी, येलो भी 3 आउट ऑफ 4 थी. 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16. तो 9 आउट ऑफ 16 वर राउंड येलो. अगर हम बात करते हैं राउंड ग्रीन की, जो राउंड की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 3 आउट ऑफ 4. इसी तरह जो ग्रीन की फिनोटाइपिक रेशियो है इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है 1 आउट ऑफ 4. तो इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 3 आउट ऑफ 16. तो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये चीज़ प्रूव की है. इसी तरह रिंकल्ड की जो फिनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वो है 1 आउट ऑफ 4, और येलो की जो फिनोटाइपिक रेशियो है इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है 3 आउट ऑफ 4. तो इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो भी रिंकल्ड येलो की 3 आउट ऑफ 16 ही बनती है. इसी तरह रिंकल्ड की जो फिनोटाइपिक रेशियो है इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है 1 आउट ऑफ 4. इसी तरह ग्रीन की भी जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो बनती है 1 आउट ऑफ 4 इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में इसकी रेशियो देखते हैं तो रिंकल्ड ग्रीन की तो वो बनती है 1 आउट ऑफ 16. तो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट रूल को कि प्रोडक्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल. नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाई मेंडल वाज लकी इन एक्सपेरिमेंट. हमें ये पता है कि जीन जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट करते हैं. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स का मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. ऐसे जीन जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं वो लिंक्ड होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, जबकि ऐसे जीन जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं वो असॉर्टमेंट करते हैं. या फिर ऐसे जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं जो कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं तो वो फार अपार्ट हों. तो मेंडल ने अपने काम के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, तो वो उसके लिए एक लकी चॉइस था. मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स पे काम किया था, और जो पी प्लांट है इसमें भी
7 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। मेंडल ने जो ट्रेड स्टडी की थी वो उनके जो जीन्स थे या तो वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे थे, या फिर अगर वो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे थे तो वो फार अपार्ट थे, जिसकी वजह से उनके मेंडल के जो जीन्स थे वो इंडिपेंडेंटली असर्ट कर गए थे। अगर मेंडल एक और ट्रेड को स्टडी करता जो कि 8वीं ट्रेड होती तो वो अपने इस रिजल्ट को कभी प्रूव ना कर पाता, क्योंकि रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है जो पी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं या उनके जो ट्रेड्स के एलील्स हैं वो सारे के सारे लिंक्ड हैं सवाई इन 7 ट्रेड्स से। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि मेंडल वाज क्वाइट लकी इन हिज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हिज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखा, उसको डिफ़ाइन किया, फिर हमने ये कहा कि उसको डाईहेब्रिड क्लास से प्रूव किया गया था, फिर हमने डाईहेब्रिड क्लास को डिफ़ाइन किया और फिर डाईहेब्रिड को डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने क्रॉस देखा जो कि इसमें 2 ट्रेड्स को फॉलो किया गया था और उसकी रेशियो जो आई थी वो 9:3:1। फिर हमने प्रोबेबिलिटी को चेक किया वो क्या कैसे आती है, फिर हमने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया और लास्ट में हमने ये देखा कि वाई मेंडल वाज लकी इन हिज एक्सपेरिमेंट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डोमिनेंस को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।